dielectric inside. It will take 20 minutes, I think. Then we'll be finished with this chapter, except the RC circuit. Force on dielectric slab. So बस एक डाउट है, ट्रैप डोर पे एक्टिव टेस्ट पे Trap door पे mock test में होगा always. That is that I upload will be in mock test. That is that you give and you paused in between. That will be in active test. And the test that you appeared already, that will be in test history. And topic wise test is the one you want to do the practice. Inserted in the between the cap plates of the capacitor. So again, there are two different scenarios possible. पहला ये है कि battery remains connected throughout the process, and second is the dielectric is inserted after the removal of battery. So suppose this is the length L. Length of this plate is L, breadth is B, distance between them is D. As usual, L into B को हम A लिख लेंगे. Now a dielectric slab is being inserted inside. When dielectric slab is going inside, we have to find the force acting on it. So अभी suppose इसका X length अंदर आ चुका है. This is the dielectric and dielectric X length is inside. We have to calculate the force acting between the on this dielectric slab when it is taken inside. So first case is while battery remains connected. पहली बार इसमें force क्यों लगेगा? Why there will be force? Any idea? Why there will be force? इस डाइलेक्ट्रिक पे कैपेसिटर की वजह से फोर्स क्यों लगेगा कैपेसिटर की प्लेट से? While battery remains connected throughout the process. Yes. इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उससे फोर्स होगी. ओके, चलो मैं हिंट देता हूँ. ये जो ऊपर वाली पॉजिटिव प्लेट है, इस पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली. नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज. This positive will induce negative on the closer surface of the dielectric, and negative will induce the positive charge. So because of that, the positive negative को और negative positive को अपनी तरफ pull करेगा. Dielectric को बस केवल इसके mouth तक लेके जाना है, and then it starts going inside because of the force applied by the parallel plates. The charges induced are always of opposite sign, and because of these induced charges on the dielectric slab, जैसे से अंदर जाएगा इस induced charge को कैपेसिटर की प्लेट पे जो चार्ज है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, and that's why it is getting pulled inside. My voice is clear? Yes, sir. यस. सर दूसरे बैच में किसी बच्चे ने ऐसा बोला कि आपकी आवाज क्लियर नहीं आती. थोड़ा मैं प्यार से बोलता हूँ इसलिए शायद होगा ऐसा. हाँ, सो अब हम इसमें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स? आइडिया, हिंट. सोचो अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना, व्हाट आर द मेथड्स टू कैलकुलेट फोर्स? या तो हम Q into E कर ले, बट सिंस इट इज ए इंड्यूस्ड चार्ज और वो भी पूरा का पूरा अंदर नहीं है, सो इंड्यूस्ड चार्ज हमें नहीं पता है. What is the other possible way of finding the force in any system? थोड़ा सा मतलब रैंडम सा क्वेश्चन है, बिकॉज what are the possible ways, other possible way? अगर हम QE से तो निकाल सकते हैं, बट Q is the induced one, और उसके लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला, कोई स्टैंडर्ड टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए हम उसको डायरेक्टली ऐसे फिगर आउट नहीं कर सकते. राइट, फोर्स लगेगा, ये समझ में आ गया. अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ये भी समझ में आ गया. इट विल बी अट्रैक्टिव फोर्स. अब हमें उस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. यस,
प्रिंस प्रिंस किसी भी सिस्टम का इंटरनल फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन पता है तो F इज इक्वल टू माइनस ऑफ du by dx, राइट। ये कहाँ पढ़ा था हमने, विच चैप्टर? 11th में 11th में पढ़ा है और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ा है। E is equal to minus dv by dx. We can find the force in a system if we know the potential energy as a function of time, right? ये फॉर्मूला पता है ना, F Yes, is equal to sir. minus dv by dx. Yes, sir. अब यहाँ पर U जो है वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है। सो अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, बस हमें C इक्विवेलेंट निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ x, where total energy is stored in the system it will be equal to half C equivalent into V square, because potential तो कांस्टेंट है, राइट। C equivalent कैसे निकालेंगे? How will calculate C equivalent? How will we calculate C equivalent? We can consider two separate capacitor, जैसे हमने वो लिया था जब बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक होते हैं, when there are multiple dielectrics हम उसको C1 C2 अलग अलग ब्रेक कर लेते थे। Similarly we can consider this as two different dielectric, two different capacitor, and both are connected in parallel. First one is filled with dielectric और इसकी लेंथ होगी x, ब्रेड्थ होगी v। ये समझ कुछ कह रहे थे आप शायद? मैं बता रहा था मैं उसकी C1 plus C2 करेंगे। C1 plus C2 कर लेंगे, हमें एज अ फंक्शन ऑफ x चाहिए, सो दिस इज x हियर। दूसरी तरफ जो होगा इसकी लेंथ है l माइनस एक्स इंटू बी और ये गैप इज स्टिल d। So we can assume this as two separate capacitors having capacitance C1 and C2, and they both will be connected in parallel. C1 कितना हुआ इसमें? C1 है डाइलेक्ट्रिक फील्ड वाले का, so K epsilon naught area upon D. C2 will be epsilon naught A divided by D. A आ जाएगा L minus x times B. होपफुली समझ में आ रहा होगा। ये लेफ्ट साइड वाले में तो वैक्यूम है, हम जो डाइलेक्ट्रिक डाल रहे थे that dielectric was inserted only till x distance. Right? C equivalent is C1 plus C2. C equivalent is C1 plus C2. K epsilon naught Bx by D. K epsilon naught Bx by D plus epsilon naught L minus x. Epsilon naught L minus x B by D. Epsilon naught B by D कॉमन कर लो, ये आ जाएगा kx plus L minus x. K minus 1 x plus L, this is the C equivalent. Equivalent capacitance when dielectric is inserted by distance x. Right? डायरेक्ट्रिक जितने में उसको अलग वजन कर लेते हैं, जिसमें वैक्यूम है उसको C2 में K epsilon naught C2 में K epsilon naught C2 में वैक्यूम है ना, इसलिए वहां पे क्या लगाएंगे? P1 is filled with dielectric जितने अंदर है। हाँ बेटा, एक बार समझा दो वैक्यूम वाला पार्ट।
देखो ये जो है ना इतने में डायरेक्ट्रिक गया है, दिस वाज द ओरिजिनल प्लेट, Yes, sir. जितने लेंथ तक डायरेक्ट्रिक जा चुका है वो लेंथ कितनी है, x, Yes, it is sir. x, thickness is b, so this first one C1 is dielectric field capacitor, C1 is k epsilon naught, area is dx on d. अब आगे तो अभी डायरेक्ट्रिक पहुंचा नहीं, डायरेक्ट्रिक जा तो रहा अंदर, बट जो आगे बचे हुए लेंथ है l minus x, l minus x लेंथ इज वैक्यूम ओनली, उसके लिए फॉर्मूला है epsilon naught a by d, epsilon naught area is l minus x length into breadth Okay. समझ गया. divided by d, इससे हमने C इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिया. अब फोर्स का फॉर्मूला है माइनस ऑफ du by dx which is minus d by dx of half C equivalent to v square. v तो कांस्टेंट है, because battery is connected, v is constant, half is constant, so minus half v square common d by dx of C equivalent, right? C equivalent की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ गया, ये माइनस हाफ v स्क्वायर. यदि समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So because C equivalent is a linear function, तो हम इसको अलग से करके और फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. D of d by dx of C equivalent is d by dx of epsilon naught b by d into k minus 1 x plus L. epsilon naught b by d तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, k minus 1 बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, L का डिफरेंशिएशन 0, हाफ v स्क्वायर epsilon naught b by d times k minus 1. With a minus sign is representing that it is attractive in nature. Okay? Sir, L constant. L तो length थी ना, length is constant. Yes. L is the total length of the plate, B is breadth of the plate, D is the separation between the plate. चेंज क्या होगा, x जैसे जैसे डायरेक्टली अंदर आता जाएगा x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, x चेंज होगा तो अकॉर्डिंगली फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. इस फोर्स में x नहीं आता करा कहीं पे भी, all the quantities here is constant, so this slab will be going inside with a constant force when battery remains connected, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, second case, when battery is removed, dielectric inserted after removal of battery. आशुतोष, यस सर. बेटा समझ में आ गया ये, फिर से समझाऊं? सर फिर से समझा दो एक बार. वेरी गुड. थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर हम सॉरी कैपेसिटर के अंदर हम डाल रहे हैं डाइलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक डालने में जैसे डाइलेक्ट्रिक को उसके माउथ के पास लेके जाएंगे, डाइलेक्ट्रिक के अंदर अपोजिट टाइप के चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं, पॉजिटिव प्लेट के साइड नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव साइड की तरफ पॉजिटिव चार्ज, राइट? तो ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, एज अ रिजल्ट डाइलेक्ट्रिक स्लैब स्टार्ट्स मूविंग इनसाइड. और हमें उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे कितना फोर्स लग रहा है ये निकालना है.
यस, Yes, sir. तो F इज इक्वल टू क्यू ही एक तरीका होता है फोर्स निकालने का, वो निकाल नहीं सकते क्योंकि हमें ये चार्ज नहीं पता चार्ज कितना आएगा और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा डायरेक्ट स्लैब पे। दूसरा तरीका, अगर हमें एनर्जी पता हो सिस्टम की तो माइनस डी यू बाई डी एक्स से भी फोर्स निकाल सकते हैं। हमने एनर्जी निकाल ली क्योंकि एनर्जी इसमें क्या होगी, एनर्जी विल बी एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। देयर आर टू कैपेसिटर फॉर्म, जैसे जैसे डायरेक्ट्रिक अंदर जाएगा, एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर और दूसरा वैक्यूम कैपेसिटर। सिंस दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, हमने दोनों को अलग कैपेसिटर यूज कर लिया। कंसीडर देम एज सेपरेट कैपेसिटर, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, हाफ सी इक्विवेलेंट टू वी स्क्वायर से एनर्जी और फिर उससे फोर्स। क्लियर क्रिश? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड केस, हम डायरेक्ट्रिक डाले बैटरी को हटाने के बाद, इसमें क्या रिजल्ट आया? पहली बात, इट इज अट्रैक्टिव फोर्स एंड इट इज कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन हाउ मच डायरेक्ट्रिक इज गॉन इनसाइड। सेकेंड, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है डायरेक्ट्रिक विल गो इनसाइड एंड विल सर मुझे बस एक डाउट डायग्राम में। सर एक बार डायग्राम चलाना। डायग्राम। ओके, तो C1 और C2 बता दो क्या है, ये दो प्लेट्स जो है। ये दो अलग अलग कैपेसिटर बन गया ना। ये जो डायरेक्ट्रिक वाला बना इसका कैपेसिटर C1 है और जो हवा वाला बचा इसको C2। अच्छा, ओके। हमने वो केसेस किया था ना, इसमें कई सारे डायरेक्ट्रिक कॉम्बिनेशन हो तो हम हर एक डायरेक्ट्रिक वाले यस पार्ट को सर। अलग कर लेते थे, C1 C2 C3। वैसे यहाँ पे C1 जिसमें डायरेक्ट्रिक है, C2 जिसमें वैक्यूम है। Second case, when battery is removed. Case 2, dielectric inserted after the removal of battery. अगर हमने बैटरी हटा दी तो चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। मेथड तो सब कुछ सेम रहेगा, बस जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो बदल जाएगा। If now the dielectric is inserted, so now since charge will be constant, so हम जो एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे that will be in terms of charge. Right, again the similar formula, similar method. Differences क्या है इसमें, जो हम चार्ज एनर्जी के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, that formula will be slightly changed. That formula will not be half CV square, that formula will be Q square by 2C. एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के कैपेसिटर से C1, दूसरा वैक्यूम फील्ड कैपेसिटर से K2। बड़ा समझ आ रहा, थोड़ा डायग्राम उतना अच्छा नहीं बना बट समझ लेना। सो बेसिकली ये हो गया कि इतना अंदर है, एक्स लेंथ ऑफ डायरेक्ट्रिक इज गॉन इनसाइड, और इस टाइम पर हमें इस डायरेक्टर पे फोर्स निकालना है। अगर बैटरी हटा दी है तो बैटरी हटाने के बाद द टोटल चार्ज विल रिमेन same. The charge on any of the plate cannot increase. Two capacitors, both are connected in parallel.
C1 is K epsilon naught B into X, not L. This length is B and this is X. Bx divided by D. C2 जो था epsilon naught B into L minus X by D. ये clear? C1 is filled with dielectric, C2 is completely vacuum. इसकी length L minus X. These two capacitors are created in series, so 1 upon secant is 1 upon C1 plus 1 upon C2. Right? इससे हम कैलकुलेट करेंगे C equivalent, so K epsilon naught Bx plus epsilon naught B L minus X. Plus D upon epsilon naught B into L minus X. बेटा सही है ये सीरीज की सॉरी why it will be in series, it is still in parallel ना, Yes, it is still in parallel, yes, but only formula will be changed जब हम formula use करेंगे किसका, formula for energy, then it will be changed. Equivalent capacitance of these combination will be C1 plus C2, so that will be still K minus 1 जो पीछे था exactly same, K minus 1 X plus L. so बस ये समझा था केस वन से डिफरेंट क्या है, मतलब बैटरी मूवी क्या क्या होगा। हाँ बेटा, सर एक बार बता दो डिफरेंस क्या है केस वन से, इस मतलब केस में पिछले वाले में हाँ इसमें हमें difference। डायरेक्टली इंसर्ट किया बैटरी हटाने के बाद, और यहाँ पे डायरेक्टली तब इंसर्ट कर रहे थे जब बैटरी कनेक्टेड थी। सर तो ये वाले अट्रैक्टिव केस फोर्स नहीं में होगा बैटरी ये, कनेक्ट, हाँ बेटा अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा इस बार। अट्रैक्टिव फोर्स ही होगा, बट फोर्स का थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, इट विल नॉट कम कांस्टेंट फोर्स एनीमोर, इट इज अगेन बीइंग पुल्ड, क्योंकि वो तो प्रॉपर्टी है, पॉजिटिव प्लेट अपने पास वाले डायरेक्टिव सरफेस पे नेगेटिव इंड्यूस करेगी, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव इंड्यूस करेगी, राइट। यस सर। अब यहाँ पर जब फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, F is equal to minus of du by dx and U is equal to Q square upon 2 times C equivalent. Q constant है, 2 constant है, d by dx of 1 upon C equivalent, ये चेन रूल से आ जाएगा। Right? Substitute the value. Minus Q square by 2. C equivalent is epsilon naught B by D into K minus 1 X plus L पूरे का whole square into epsilon naught B by D times K minus 1. एक बार पिछले स्लाइड पे जा सकते हैं। तो यू कैसे निकला आपका, आपकी
बेटा यू यू कैसे निकाला आपने? क्या कैसे निकाला? सी इक्विवेलेंट यू नहीं, सी इक्विवेलेंट तो मिल गया। तो आगे फॉर्मूला इधर क्यू स्क्वायर बाय 2c। हमने ये फॉर्मूला यूज किया कि यहाँ पे चार्ज सेम है, पोटेंशियल तो बदलता जा रहा है, डायरेक्टली डालने पे पोटेंशियल बदलता जा रहा है बट चार्ज विल रिमेन सेम, क्योंकि जो सोर्स ऑफ चार्ज था वो चला गया। ओके। अंडरस्टूड? सो ये दो केसेस थे Yes, sir, हमने yes, करने sir, थे। yes, sir. वी सॉ दैट अगर बैटरी कनेक्टेड रहती है तो force will be constant, it is attractive, the dielectric slab goes inside with a constant force. But if the battery is removed and then dielectric is inserted, dielectric will be moving with a variable force which will be decreasing as the plate goes inside. क्योंकि x जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे force की वैल्यू कम होती जाएगी। Right? Yes, sir. Okay, so now this capacitor part is complete. Capacitor chapter, each and everything is completed now. And question of the DPPs you have to do. DPP के questions करना mandatory है, किसी ने पूछा था मुझसे DPP करनी जरूरी है या नहीं? DPP is must, क्योंकि DPP के questions ही हैं computer level वाले, वो optional नहीं है। If you are preparing for JEE, if you are not preparing for JEE or NEET, then yes, you can leave that. अदरवाइज डीपीपी इज मस्ट। उसके बाद आपको कोई बुकलेट सॉल्व करनी है, जो बुकलेट हमने प्रोवाइड किया या जो भी आपके पास है, दैट इज ओनली आफ्टर दैट। सर कल के टेस्ट में एक डाउट था। बोलो सर क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, वो मेरे पास पेपर अभी नहीं है, एक बार पेपर चेक होगा आपको मिल जाए, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। सर आप इसके प्लीज नोट्स भेज दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। थैंक यू सर। Okay, yes. So now capacitor is completed and we can move to the next chapter, current electricity. Yes. Okay. Anybody interested in offline classes? कुछ parents पूछ रहे थे मुझसे। I don't think so yet. Sir, 1-2 weeks में तो मैं offline आ गया। 1-2 weeks में। हाँ बेटा। तो 1-2 weeks के बाद offline। मतलब अभी हम स्टार्ट तो नहीं कर रहे हैं, अभी तो obviously we are still waiting for the any next guideline, but yes, कुछ parents पूछ रहे थे आज की when are we starting? ठीक है, कोई नहीं, देख लेंगे। We can start. स्कूल में यूटी कब है? अर्लीस्ट यूटी किसी भी स्कूल में। Vesti, when is your UT? सर अभी कोई डेट आई नहीं है। अच्छा, डेट नहीं है, लेकिन सिलेबस आ गया। सर एक मिनट चेक करके बताते हैं। सर मेरे जुलाई में है। सर मेरे 9 जुलाई को है। वेरी गुड। और हम कुछ 2-3 दिन की 4 दिन की वेकेशन भी करने का सोच रहे थे, पता नहीं होगी कि नहीं, आई डोंट नो। समर ब्रेक टाइम। सर यस। सर एमिटी का तो 5th को है, लेकिन हमारा हो चुका है सारा सिलेबस। फर्स्ट 2 अच्छा, चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर से ओके। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो होपफुली कुछ 3-4 दिन के लिए शायद मैं जाऊंगा, आई विल होम। हो सकता है 3-4 डेज की समर ब्रेक क्या मतलब, ठीक है, होमवर्क मिलेगा, ढेर सारा होमवर्क। और डीपीपी आप लोग कर नहीं रहे, ऐसा मुझे सुनने में आया है। डीपीपी के क्वेश्चन, इसीलिए वो टॉपिक वाइज डीपीपी इस बार दी गई है कि कुछ भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। So most of the portion is covered in those DPP. Don't skip those DPPs, assuming कि वो थोड़े से मुश्किल है।
हाँ, जो बहुत मुश्किल लगे वो क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं फॉर द टाइम बी, बट डोंट स्किप दी, ये वो कंसेप्ट जिसमें सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं कि जेई लेवल के हैं, वो क्वेश्चंस कुछ थोड़े इजी वाले भी हैं, इजी वाले मतलब लाइक बोर्ड लेवल के क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑल आर देयर, सो यू शुड नॉट स्किप द डीपीपी इज फॉर द लर्निंग पर्पस। ठीक है, सो नाउ वी आर क्लोजिंग दिस चैप्टर कैपेसिटर वाला, इसमें और कुछ कुछ जो क्वेश्चंस स्पेसिफिक होंगे दैट विल डिस्कस इन फ्राइडे क्लास। Chapter number 3, current electricity. So electric current is defined as the rate of flow of charge when charge flows, but if is defined only this much, जैसे हमने क्लास 10 में पढ़ा था, the rate of flow of charge is called electric current. तो थोड़ा सा ये इनकम्प्लीट से डिफिनेशन है। कैसे? जैसे मेटलिक वायर लेते हैं, मेटलिक वायर के अंदर देयर आर इलेक्ट्रॉन्स मूविंग रैंडमली इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन बिकॉज ऑफ इट्स थर्मल एनर्जी। टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत सारी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर ही रहे, बट स्टिल देयर इज नो करंट। अगर हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोलते हैं सिर्फ इतना, देन वी हैव टू स्पेसिफाई कि हम किसके अक्रॉस कैलकुलेट कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज डिफाइंड ऑन एन एरिया, एरिया का साइज क्या है उससे मैटर नहीं करता, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग दिस एरिया पर यूनिट टाइम। फ्लो करना इज नॉट एन इम्पोर्टेंट, द क्रॉसिंग दैट एरिया इज इम्पोर्टेंट। जैसे कोई चार्ज उसके पैरेलल मूव कर रहा है या राइट में जाके फिर लेफ्ट में, एक राइट में गया एक लेफ्ट में आ गया, सो दैट विल नॉट बी कंस्टिट्यूटिंग द करंट। सो द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम एक थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया, वो डायरेक्शन कुछ भी हो चलेगा, द अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग एन एरिया पर यूनिट टाइम। अब इसमें एरिया सिर्फ रेफरेंस के लिए है कि हम जब करंट की बात करें तो हम हवा में करंट नहीं बोल सकते, इट हैज टू बी ऑलवेज मेजर्ड एट अ सर्टेन क्रॉस सेक्शन। अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग एन एरिया पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो है ही ऑब्वियसली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज में थोड़ा स्पेसिफिक, इट हैज टू बी ऑलवेज क्रॉसिंग एन एरिया। अगर उस एरिया के थ्रू पास नहीं हो रहा है, एरिया को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो जो मोशन है दैट मोशन will not be accounted for the electric current in that particular scenario, right? I is equal to Q by T for average current. So electric current through an area in time t, it will be defined as average electric current. This will be delta Q by delta T. तो ये वैसे ही कुछ है, टोटल चार्ज पास डिवाइड बाय टोटल, ठीक है। और instantaneous current at any moment of time, it will be the dq by dt. Current has a direction but still is considered to be scalar, since current direction is independent, वो हमेशा एक ही फिक्स डायरेक्शन में रहती है, it cannot change randomly in any other possible direction, that's why ये चैप्टर तो आप शायद पढ़ चुके हैं ना एपी सर के साथ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर सकता हूँ, but we will discuss. Yes, sir. Very nice. Electric current is always due to the flow of charge. The direction of electric current was by convention chosen in the direction of flow of positive charge. It is a scalar quantity, but it has a direction associated with it, and that direction is chosen as a random. The direction of electric current is in the direction of flow of positive charge, in the direction of flow of positive charge or opposite to the negative charge. AP सर के साथ हमने वर्क डन एंड मूविंग द चार्ज तक कर लिया। हाँ बेटा, सर अभी तक AP सर के साथ वर्क डन एंड मूविंग द चार्ज तक कर लिया हमने, वो किलोवाट आवर वाला कॉन्सेप्ट। ये आपकी बात समझ नहीं आ रही, क्या कहना चाह रहे हो, थोड़ी वॉइस मुफल है। तो मैं कह रहा हूँ कि AP सर के साथ वो वर्क डन एंड मूविंग द चार्ज तक कर गया है, बस अभी तक पूरा चार्ज नहीं हुआ। तो वर्क डन मूविंग चार्ज, हाँ ठीक है, पता नहीं, Yes. ओके तब चलने दो पैरेलल, हम हर एक टॉपिक करेंगे, ऐसा नहीं कि आई विल बी जंपिंग टू द टॉपिक बिकॉज़ यू स्टार्टेड।
but हम थोड़ा more focus रखेंगे towards that part which is not in NCERT and SL, which is beyond that NCERT book. ठीक है, तो जैसे किसी भी वायर में अगर हम करंट डिफाइन करें तो करंट डिफाइन करने के लिए हमें ये पहले बताना पड़ेगा किस एरिया में करंट बोल रहे हैं, which particular cross section is taken under consideration. Then only the total amount of charge crossing through that will be defined as the current. पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में. If there is a negative charge moving, then the direction of electric current is opposite to the direction of negative charge, and this is by convention. There is no logic behind it. It was just randomly assumed. Electric current is because of the movement of charge, और वो charge जो move करते हैं that is called charge carrier. So the particles or the charge which एक बार पिछले स्लाइड पे चलना है क्या? आर्यन कल टेस्ट दिया था. आर्यन सर दिया था आर्यन टेस्ट. हो गया सर. यस सर दिया था. एक ही क्वेश्चन था, थोड़ा टेढ़ा उसमें शायद. The particles which move in the flow of electric current are called charge carriers. So metal में केवल electrons move करते हैं. In the metallic wire only free electrons move. Metals के अंदर electron move करते हैं because electrons exist in the free. Metal के अंदर electrons होते हैं. Electrons are negatively charged and these electrons are called free electrons. जो सबसे बाहर वाले शेल का इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी मेटल में, that is free for conduction. लेकिन ये इलेक्ट्रॉन किसी बाहर से किसी दूसरे एटम से नहीं आया, ये इसके अंदर का ही है, and that is why इसके अंदर जिस भी मेटल से बाहर निकल के आया होगा जिस एटम से, उस पे पॉजिटिव चार्ज आयन आ जाएगा, बट वो पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकता बिकॉज इट इज अ सॉलिड एंड सॉलिड हैज फिक्स्ड लैटिस, जिसमें एटम फिक्स है इसलिए उसका आयन फिक्स है. सो इन द केस ऑफ मेटल देयर आर बोथ द टाइप ऑफ चार्जेस, बट जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्री फॉर्म में होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जो पॉजिटिव चार्ज है दोज आर फिक्स्ड मेटेलिक आयंस. सो नेगेटिव चार्ज भी है और उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी है. दैट इज व्हाई ओवरऑल charge is zero. Fixed positive ions are in the lattice, it will not move. The current is only because of, so in the metals free electrons are the charge carrier, जिसकी वजह से करंट फ्लो होती है. पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं कर सकते बिकॉज दे आर फिक्स्ड इन देयर लैटिसेस. सो यहाँ पर अगर अब हमें अगर कैलकुलेट करना है करंट, इलेक्ट्रिक करंट इन एनी मेटेलिक वायर, electric current in metallic wire or metal through a cross section area. तो इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना होगा कि उस एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस हो रहे हैं पर यूनिट टाइम. सपोज अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर क्रॉसिंग, n इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस हो रहे हैं पर सेकेंड, सो करंट विल बी टोटल चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम and that will be small n into e. But this formula is applicable only for metal, क्योंकि metal में ही केवल electrons move करते हैं, and in the other cases there will be other type of charge carriers, right?
N is the number of electrons crossing per unit time through the number of electrons crossing per unit time through that area. Okay. ये फॉर्मूला केवल मेटल के लिए। अब आता है सॉलिड में, इफ यू टेक इन द लिक्विड, लिक्विड जैसे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज अ कंडक्टर, वो क्लासिफिकेशन हम पहले कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। सी क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक करंट को इजीली पास होने देते हैं, इंसुलेटर जो नहीं होने देते, और सेमीकंडक्टर in the case of electrolytic solution, there will be positive ion as well as negative ion, and both ions will be conducting. Right? So अगर हम किसी electrolytic solution के लिए करते हैं, the electrolytic solution should have both positive as well as negative ion. तो उसमें हमें दोनों के current को include करना पड़ेगा. Like in the battery, inside the battery, in electrolytic solution, positive charge ion and negative charge ion both will be moving. Right, so N into E is the formula applicable only for metals. N is the number of electrons crossing that area per unit time. अगर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें कैटायन एंड आयन बोथ विल बी मूविंग. So we have to calculate the current because of both, and then we have to add. Right, so suppose it is an electrolytic solution. In the electrolytic solution, liquid solution, there will be both the ions which will be conducting electricity. To include both the current, we have to count both the number of ions crossing per unit area. So suppose this is the metal electrodes. There is electrolytic solution, and that solution, any area we consider. So there will be positive charge ion, there will be negative charge ion, let's say sodium ion and chloride ion. Positive charge ion will be moving towards negative plate, and the negative charge ion will be moving towards positive plate. Both the ions are moving in opposite direction, but their current will come out ultimately in the same direction, because for the positive charge, current is in the direction of flow of positive charge, and negative charge, it is in opposite direction. So here current will be current due to positive charge cation and negative charge anion. We have to find the number of electrons which are crossing, number of electrons ka number of ions. But since it is a positively charged, so we can positive charge plus A का मतलब क्या हुआ? It is Na plus का मतलब it has a charge of C. It has a charge of plus E, and similarly Cl minus will also have a yes. So number of sodium ions crossing per time is N1,
number of chloride ion crossing per minute time is Ne, then it will be N1 plus N2 times E. N1 is number of sodium ions crossing per minute time. N2 is number of chloride ion crossing per minute time. अगर ये कॉपर या ऐसा इसमें था +2 होते तो हम उसमें मल्टीप्लाई बाय 2 ही करते. राइट. थर्ड हो सकता है इन द गैसियस एनवायरनमेंट गैस ट्यूब. इन द गैस डिस्चार्ज ट्यूब. गैस डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन लाइक द नॉर्मल ट्यूबलाइट. ट्यूबलाइट के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाते हैं. गैस डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब जैसा नॉर्मल वाली जो ट्यूब होती थी ट्यूबलाइट, इसमें कुछ गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं. जब हम पोटेंशियल लगाते हैं तो गैस मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएंगे और अंदर गैस के आयंस. This is the positive gas ion which is also called as plasma state and this is the electron. अब इसको फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वैसे ही फ्री है. इसमें तो पॉजिटिव आयन भी फ्री है because it is the gas vacuum tube. It is the vacuum tube. इसके अंदर स्पेस ही स्पेस है मूव करने के लिए. मेटल में प्रॉब्लम क्या थी? इलेक्ट्रॉन्स के पास फ्रीडम तो है, इलेक्ट्रॉन इज फ्री बट इट कैन नॉट कंडक्ट बिकॉज जैसे वो मूव करने की कोशिश करेगा कोई ना कोई रास्ते में आयन आ जाएगा and collide with the ion and it cannot move. Similarly, in the case of gas discharge tube, when we have to calculate the current, it will be current due to electron plus current due to ions और दोनों के लिए हम number of charge carrier crossing per unit time कर लेंगे. Again, positive charge and negative charge will be moving in opposite direction, but their currents will come in the same direction. I positive and I negative. Similarly here, I positive in the direction of flow and I negative will also be opposite to the flow. So though the ions move in opposite direction, right? Okay. So electrons और ions, so ऐसे हम एक दो questions कर लेते हैं. वो simple वाले तो आपने होंगे शायद NCERT की क्लास में. बड़ा लॉजिक समझ में आ गया ना. जब भी हमें किसी भी ऐसे केस में करंट कैलकुलेट करनी होगी, it has to be the current due to all possible type of charge carrier. जैसे सेमीकंडक्टर में क्या होगा? सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स both will be conducting, so we'll have to calculate the current due to both of them. ठीक है. इसकी डीपीपी आपको मिल जाएगी. एक बार पुरानी वाली डिस्कस हो जाए उसके बाद. इसका क्वेश्चन है. हाँ बेटा. सर एक बार पीछे वाले पे. यस सर. हाँ. डन. चार्ज कैरियर कितने हैं वो हमें उस कंडक्टर में उस करंट में पता होना चाहिए. व्हाट आर द चार्ज कैरियर? अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग इन दैट. सो क्वेश्चन, वायर कैरीज करंट ऑफ. दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं बेस्ड ऑन दिस लॉजिक जस्ट टू स्टार्ट विद. हम और अच्छे वाले भी करेंगे. इफ अ वायर, मेटेलिक वायर carries current of 1.30, ये आपकी फर्स्ट डीपीपी के क्वेश्चंस हैं.
ये मैंने अभी भेजे नहीं है, मैं भेज दूंगा अभी पुरानी वाली। Carries current of 1.30 ampere. Find the number of electrons. Find the number of electrons flowing at any point per second. Number of electrons passing through the wire per second. ये मेटल वाला फॉर्मूला हो गया, I is equal to n times E. I is 1.30 and हमें कैलकुलेट करना है 1.6 into 10 to the power minus 19. यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये तो सिंपल हो गया मेटलिक वायर वाला। नेक्स्ट इज if suppose in a hydrogen gas discharge tube, in hydrogen discharge tube, the number of hydrogen ions drifting across an area is 1 into 10 to the power 18, while the number of electrons drifting in opposite direction is 2.7 into 10 to the power 18. Find the total current in the tube. ये दूसरा वाले फॉर्मूले पे हो गया, find the total current in the tube. So this is a discharge tube. Discharge tube means there will be both gaseous ions. यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन का मतलब H plus और H plus पे चार्ज होगा same as 1 electron. H plus is nothing but proton और proton पे चार्ज होता है same as that of electron but positive. So I is equal to N1 plus N2 times E, because here both electron as well as gas ions both are producing the current. I will be equal to N1 plus N2 times E. कितना आएगा इसका आंसर? जो भी है कैलकुलेट कर लेंगे। It was 2.7 plus 1, so 3.7 into 10 to the power 18 into 1. 5.92 into 10 to the power minus 11. Total Okay. current. Oh, sorry, 18 है, minus 1. ये 18 था, दोनों को। Yes. Next question is the charge passing through an area. The answer to this question is 5.92. It is 5.92 ampere. So 0.592 नहीं होगा Yes, sir. 0.592. क्योंकि 10 to the power minus 1 है ना। बहुत गलत लिखा है 0.59. Yes. 0.59. Yes. Next question is the charge passing through an area in time t is given by
if the charge passing through an area in time t. In time t is given by q is equal to 2t square minus 4t plus 3. 2t square minus 4t plus 3 coulomb. Find the average current in 4 seconds and instantaneous current at t is equal to 4 seconds. Find average current in 4 seconds. And second, find the instantaneous current in instantaneous current at time t is equal to 4 seconds. Since वायर से जो total charge pass हो रहा है from 0 to 4, उसको हम calculate कर लेंगे by using the जैसे displacement calculate करते थे by using the total charge pass in 4 seconds minus charge passed at t is equal to 0. Because t is equal to 0 पे charge is not 0. Average current is total charge passed delta q by delta t, which is q at time t is equal to 4 minus q at time t is equal to 0 divided by 4 ampere. t को 4 पुट करोगे तो कितना आएगा ये सॉल्व करके बताना 16 into 2 so 32 minus 16 plus 3 और t को 0 पुट करोगे तो 3 divided by 4 which becomes 4 ampere. 4 ampere. Average current is 4 ampere. Instantaneous current के लिए इसको differentiate कर लेते हैं. The instantaneous current at time t. The instantaneous current it will be given as dq by dt. So I is dq by dt and that will be d by dt of 2t square minus 4t plus 3. 2t square 3 minus ampere. 4 plus 3. कितना? So 3 आएगा ना? 12. ठीक है t is equal to 4 अच्छा पे अच्छा क्या? कसो yes sir 12 So 16 minus 4 that will be 12. 12. Instantaneous current is 12 ampere and average current was 4 ampere. So charge के function से हम current calculate कर सकते हैं. If charge is given as a function in a graph, then it will be the rate of change of charge. I is equal to dq by dt. Opposite calculate करना है अगर हमें current is given and we have to find the charge. I is equal to dq by dt. dq will be I times dt. And then we can integrate this on both this side. 0 to t, 0 to q. Total charge passed in time t through a wire if current is I. Total charge passed in time t. So total charge q will be equal to 0 to t I dt. और ये आ जाएगा एरिया अंडर करंट वर्सेस टाइम ग्राफ. अगर हमें करंट और टाइम का ग्राफ पता है तो अगर फंक्शन पता है then we need to integrate current over time. That will be the total charge. If graph is known, then we calculate area under current versus time graph. And if function is known, then we do the integration. Right. So पहली जो दी थी आपको मैं study करूँगा आज night तक. It has the questions based on these formulas only. Find the electric current through a wire. Find the electric current in the metal. Find the electric current in the electrolytic solution. Yeah. Next question here is. Without तो होगा नहीं वैसे होना चाहिए भी because it is the same thing that we have already done in class 10. कुछ नई चीजें हो सकती हैं. Yeah.
So question is, if current at a time t is given as, if current at any time t passing through an area is given as I is equal to 15 plus 6 times t. Calculate the total charge passed. Calculate the total charge passed in. Total charge passed through the wire in a time span of 12 seconds. So I is 15 plus 60. I is 15 plus 60. यहाँ से हम Q calculate कर लेंगे. I current is given as a function of time. So Q is equal to I dt. Integrate from 0 to 12. Yes. क्या है आंसर? 15 plus 60 इसको इंटीग्रेट करो फ्रॉम 0 to 12. What is the answer? Options are 180, 252, 414 and 652. आशुतोष क्या आंसर इसका? 0 to 12 सर इंटीग्रेशन कर करने रहा का. हूँ. So can you please repeat the options? अब मैं आंसर बताओ क्या आया? 180, 212, 414 and 614. What is your answer? So 6112 आ रहा है मेरा. 612. 612. Okay. I think it's in the option. The 612. same 612 आ रहा है मेरा. 612 colon. That is the option. So, ये तो हो गया थोड़े बच्चों वाले क्वेश्चंस. इनमें चार्ज का फंक्शन गिवन हो तो हम करंट निकालेंगे. करंट का फंक्शन गिवन हो तो हम चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे. 15t plus 6 into t square by 2. Limit from 0 to 12. राइट. 612 कूलम. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे करंट प्रोड्यूस कैसे होती है. व्हाट इज द फिजिक्स ऑफ द करंट. इलेक्ट्रिक करंट वो अभी केवल मेटलिक वायर के लिए पढ़ेंगे. सेमीकंडक्टर्स में सेमीकंडक्टर्स के पढ़ेंगे. गैस डिस्चार्ज ट्यूब मोस्टली यूज नहीं करते, सो इसको नहीं पढ़ेंगे. इलेक्ट्रिक करंट इन मेटलिक वायर. हाउ डज इट कम एंड अंडर व्हाट सिनेरियो इट विल बी देयर. किसी भी मेटलिक वायर में, कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, बट फिर भी इलेक्ट्रॉन्स होते भी बहुत सारे हैं और इलेक्ट्रॉन्स मूव भी कर रहे होते हैं विद अ वेरी वेरी हाई स्पीड. 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ऑर्डर की स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, बट स्टिल इट इज नॉट गिविंग एनी करंट. व्हाई? बिकॉज दिस मोशन इज रैंडम. इट्स लाइक द ब्राउनियन मोशन. Particles are moving randomly anywhere. In absence of any electric field in a metal, free electrons move randomly in all the direction. Move randomly in all possible direction.
Therefore, the net flow of electrons through any cross-section area is zero. Net flow of electrons through any cross-section area is zero. Net flow zero कैसे, जितना लेफ्ट से राइट उतना राइट से लेफ्ट. So number of electrons जो भी क्रॉस करेंगे, जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में था, the net flow of electron is zero. अगर नेट चार्ज जीरो फ्लो कर रहा है तो एवरेज करंट विल बी जीरो, एंड सिंस इट इज मूविंग, दिस इज मूविंग बिकॉज ऑफ द थर्मल वेलोसिटी. थर्मल वेलोसिटी का फॉर्मूला कुछ था एनर्जी C/2 kBT. अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं इवन आफ्टर टेकिंग द रूम टेम्परेचर, देन आल्सो इट कम्स आउट 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड. ये जो वेलोसिटी है, जब हम इसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे, द एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज जीरो, otherwise thermal speed is very very high. Average thermal velocity of an electron is zero. अगर हम n number of electrons की velocity को add करते हैं, that will be vector addition. n मतलब n should be good enough in number, large number of infinite number of electron assume कर सकते हो कि metal में जितने atoms होंगे सब में से electron निकल के बाहर आ जाते हैं, electrons move randomly. Therefore electrons की average velocity zero है. Velocity zero means it is not able to give rise to any current. Metallic wire में current नहीं होगी, क्यों? क्योंकि average velocity of electron is zero. इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, जो V बार लिखा हुआ है, that is V1 plus V2 plus V3 plus Vn divided by n, that is equal to zero. अगर हम इन सारे इलेक्ट्रॉन्स के वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो कुछ ऐसे आ जाएंगे. दिस विल बी दी v1 v2 v3 vn. एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज बी जीरो. सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, दे आर नॉट मूविंग. दे आर नॉट मूविंग मतलब कि एक जगह किसी जगह से मूव करेगा तो दूसरे रैंडम मोशन की जगह वजह से उसी पॉइंट पर एक दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. सो जब तक कोई भी हम बाहर से मिट्टी, बाहर से कोई बैटरी नहीं लगाते या बाहर से कोई इलेक्ट्रिक नहीं लगाते, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स मूव भी कर रहे हैं, बट दोज मोशन डज नॉट गिव राइज टू any amount of electric current in the wire because they are moving randomly and random motion does not give rise to current. जब हमने बाहर से बैटरी लगा दी, the average thermal speed is not zero. इसको समझने का दूसरा तरीका है कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉन एक जगह से मूव करेगा, उसी जगह पर दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एंड दैट इज व्हाई देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज, देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू एनी एरिया. इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे, एक जगह से मूव करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसकी जगह पे आ जाएगा. जैसे हमने बैटरी लगाई, अच्छा इसमें एवरेज थर्मल स्पीड इज वेरी हाई. इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद वेरी वेरी हाई स्पीड of the speed of 10 raised to power 6 मीटर पर सेकेंड. वो हम बोल्ट्जमैन वाले फॉर्मूले से अप्लाई करके निकाल भी सकते हैं. 3/2 kBT था कुछ फॉर्मूला फॉर एक किसी गैसियस एटम की काइनेटिक एनर्जी का, और उसको हाफ एम स्क्वायर के बराबर. अब जब हमने यहाँ बैटरी लगाई, व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन अ सेल और बैटरी इज कनेक्टेड, when a cell or battery is connected, across the wire, across the wire,
राइट। अगर हमने कोई बैटरी या फिर हमने कोई लगा दी उसमें सेल, तो उससे क्या होता है, वन साइड बिकम एट हायर पोटेंशियल, one side will become at higher potential than the other, and due to which electron will experience, there will be an electric field produced. Potential difference की वजह से एक electric field आ जाएगी, and that electric field will give rise to force. Force की वजह से electron पे एक fixed direction में current acceleration हो जाएगा, and because of that it will start moving. So ये length है L, this length is L, area of cross section is A. When we connect a battery, one terminal is at higher potential than other, potential difference आएगा V के बराबर, and because of that potential difference applied across, there is an electric field created. So जैसे हमने बैटरी लगाई, बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड across the wire कितना, it will be delta V by delta L. डेल्टा V अपॉन डेल्टा L ऐसे कुछ था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी यहाँ पे V by L, डेल्टा V by डेल्टा R. That was the formula for electric field. इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, all those electrons will experience the force. अभी जो थर्मल वेलोसिटी थी उसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, because माइनस dv by dn का बेटा वो माइनस तो केवल डायरेक्शन के था, डायरेक्शन हमने ऑलरेडी बनाई ली है। वो माइनस लिए होता था क्योंकि हमेशा पोटेंशियल डिक्रीज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उस माइनस साइन का सिर्फ इतना सा सिग्निफिकेंस था दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। okay. अब इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस इलेक्ट्रॉन experiences a force in opposite direction which is Q into E, right? The acceleration of electron because of this electric field, it will be F by M. F is QE by M. And the electron starts moving in fixed direction along with the random motion. Now electron also has a direction, electron also has a fixed direction as well. ये जो है, this is because of electric field force. Along with this there was some random motion also. So हर एक electron के पास एक दो तरह की velocity होगी. One velocity is because of temperature, another velocity is because of electric field. But वो temperature वाली velocity को फिलहाल अब इग्नोर ही कर देते हैं क्योंकि उसकी वजह से net flows zero होंगे. Because of this electron, because of this, एक second. Right? Okay. So when there is a battery connected, battery से electric field से force से electron को acceleration मिल जाता है. But that does not mean कि इसकी original वाली velocity खत्म हो गई. This still has that temperature वाली velocity. So electron में एक drift मिल जाएगा because of this electric field force. Due to this electric field only, electron has got a push in opposite direction, and now the electron will be crossing through an area. वरना हर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे जहां से चलता था वहीं पे एक दूसरा इलेक्ट्रॉन वापस
बट अभी दूसरा इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो वो थोड़ा सा आगे निकल जाएगा. So every cross section area there is an electron crossing that. Electron will be crossing that area. ये समझ में आ रहा है? This part is clear. ये जो लास्ट स्टूडेंट बोला मैंने, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तब तक कुछ ऐसा था, इलेक्ट्रॉन रैंडमली कहीं भी जा रहे हैं बट उस जगह पर एक दूसरा इलेक्ट्रॉन आ सकता है. If this is the kind of path, suppose अभी क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, ये तो आगे मूव कर रहा है बट हर बार जो वहां पे इलेक्ट्रॉन था वो थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाएगा. एवरी टाइम इट मूव्स, इलेक्ट्रॉन विल बी ड्रिफ्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. ये रेड कलर वाला पाथ है in the presence of electric field. Green path is without the electric field or without the battery. So electron अपनी जगह से थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव कर जाता है. That is called drift, and because of drift only it is able to cross. It is able to cross an area, and that number of electrons per unit time will constitute the current. Because of this electric field, इलेक्ट्रॉन के पास एक वेलोसिटी आ जाती है, वेलोसिटी ऑफ ith इलेक्ट्रॉन. मतलब इन सब में से हमने एक इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया. v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो थी, उसके बाद एक थर्मल वेलोसिटी. जब हम एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे देन इट विल बी ऑलवेज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस ऑफ E by m. Plus a, so a is E by m into tau. अब ये जो tau है इसको हमने लिखा है ti is what, इस इलेक्ट्रॉन के मूव करने में it cannot continuously move. ti is the time between two successive collision, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव केवल इतनी देर के लिए कर पाएगा. जैसे ही वो मूव करेगा there will be so many ions around. It's a solid. Solid में उसको जगह नहीं मिलेगी मूव करने के लिए. As it moves, it will come back. It will come to stop. फिर चलेगा, फिर कोलाइड करके फिर रुक जाएगा. So ये जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आई vi, this is for one electron. उसके पास v is equal to u plus at होता था from that formula. अब इसकी जब हम एवरेज ए जो है वो माइनस क्या है, माइनस ई माइनस लिए, क्योंकि जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन. इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव x, फोर्स इज माइनस x, राइट? यस सर. इसलिए अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसकी जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. Right? So that velocity is called drift velocity. Drift velocity is average velocity of electron. ये सिंबल है एवरेज के लिए, माइनस ई बाई एम, और ये एवरेज ऑफ टी आई आ गया. थर्मल वेलोसिटी का एवरेज होता है 0, और इलेक्ट्रॉन ई बाई एम, और इसका जो एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन होगा दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. आई थिंक शायद टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया. वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास. माइनस, अभी ये बस फॉर्मूला लिख लो, माइनस ई बाई एम इंटू टाउ. टाउ इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. Tau is called relaxation time, that we will understand in next class. Relaxation time क्या होता है? Average time of two successive collision.
ठीक है, ओके, विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। सर बस एक डाउट है। बोलो बेटा। हाँ, मैं पूछ रहा था कि आपने जीरो क्यों करा है इधर VT को? हमने थर्मल वेलोसिटी का एक्सटर्नल एवरेज जीरो ना, हमने n का एवरेज कर लिया, v1 plus v2 plus v3, दिस इज द थर्मल सर वेलोसिटी। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के समय तो हमने बोला था नॉन जीरो होगा क्योंकि वो एक नहीं, थर्मल वेलोसिटी का तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई लेना नहीं है, वो तो टेम्परेचर की वजह से रैंडम ही होगा। जो सेकंड टर्म आया, देयर इज वन मोर टर्म ना, सेकंड वाला, ये सर दिस टर्म इज गोइंग टू नॉन जीरो। ओके थर्मल वेलोसिटी तो अभी भी रैंडम ही है। ओके सर अंडरस्टूड। ओके बेटा। Thank you, sir.